candidate. This is a structured discussion task assessing patient safety, information gathering, communication with the patient and relatives, and applied clinical knowledge. Mrs. Zainab Sohail is a 35-year-old woman who has been referred to the gynae clinic with a history of recurrent miscarriages. You will have 10 minutes to have a structured discussion on how you will manage this patient from now with the examiner. चलो जी शुरू करें. Yes, sir. Assalamu alaikum. Okay. My name is Dr. Hala Imdad. I have read the instructions and I'm ready for structured discussion. My task is how to manage the patient. I'm giving a written note that I have been a patient that is Mrs. Zana presented to me from gynae OPD. She's 35 years old with a history of recurrent miscarriages. So first of all, I will introduce myself to the patient, and then I will take her introduction. I will complete her biodata that especially I will ask regarding the age of her husband. Also regarding her marriage, since how long she's married, and was it a consanguine marriage or not. I will ask regarding the education status of the patient, and then I will ask regarding the first day of last menstrual period, and also ask regarding her parity. I will ask her that how many times she got pregnant, and also ask her that what was the outcome of the pregnancies. That is, that were these pregnancies planned, and when what were the number of these pregnancies? Were they confirmed by an ultrasound scan? And was fetal cardiac activity present in these pregnancies? And also ask my patient that how she lost these pregnancies, that is at which week, and what were the phenomena. That is, was they were like were they met they were like told, she was told on ultrasound scan that the baby fetal heart have gone. Yes, sir. Beta, she is para 0+3 and she has all first trimester miscarriages, and she only had fetal heart in 2 of the pregnancies, the last ones, and the first one was a blighted over. And age of the husband is 40 years of age. She is married for 5 years and she has done graduation. So what Okay. And what is her last menstrual period? When was her last menstrual period? It was about 2 weeks back. Okay. As my patient, So what risk factors will you elicit during history of this patients? इसमें आपने कुछ तो बताया, बाकी as my patient is 35 years old, I want to know the age of her husband. I want to know that it's 40 years, and I want to know that if it is a consanguine marriage. I will especially ask regarding her menstrual cycle, that is it regular? If she have ever felt that it is irregular, or if she have felt any kind of vasomotor symptoms or irregular bleeding, then I will ask my patient if there is a history of abnormal babies in her family or infertility in her family. And I will ask my patient that if she have run any tests on the product of conception, and if they were done. If they were done, kindly tell me that if she and her husband were actually told to do some blood test. And I will also ask my patient that if there were any presence of any anomalies in the baby when the baby was, because she have 2 blighted ovums, I don't know about the third one, that was it an anomalous baby or not. And now I will ask my patient this as well, that was a test called NIPT ever done in her pregnancies, which is done by free fetal DNA or not. I will also ask my patient that if she has any history of diabetes and thyroid and antiphospholipid antibody, antiphospholipid syndrome, and also ask that was she ever tested for them or not, as she had 3 miscarriages. So was she tested for them or not? After that, I will ask my patient that if was she told to do any ultrasound scan of her uterus, and was she told that this is anomalous or not. Then I will go further and complete my history.
with by asking my patient if she is taking any medication for any medical condition, if she ever had any surgery, and also ask my patient if she had also ask my patient about her cervical smears, if they are up to date. I will ask my patient if she's allergic to any medication, and if she is taking if she smokes or not, if she uses caffeine excessively, and if she exercises extensively, if she's and if she have recently lost or gained weight. After that, I will ask my patient regarding her socioeconomic status, and the condition at home, and also ask my patient about her stress level, What if, her appetite. Mita, what if, okay, Yes. what if there's no cause found? What will you do now? If there's no cause found, so after completing my examination, that is, I will but before that, I will ask my patient if she have ever done any of these tests. She will tell me about them. Then I will do my examination of my patient, in which I will do general physical examination. I will check BP of my patient, and thyroid examination will be done. I will also do I will do periabdominal examination of my patient for any mass in her abdomen, to rule out that, and then I will do local examination to rule out any vaginal discharges. Then I will need my If investigations, and I there will is, review them. आपने Yes, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, आपने अपना सॉरी पहले आपने एग्जामिनेशन भी कर लिया, फिर आपने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया. If there is no cause, everything is yes. normal, then what will you do? Okay. On investigation, everything was normal. So first of all, I will consult my patient regarding the diagnosis, that I have taken your detailed history examination and also investigations, and there is no cause found. And this type of scenario is called unexplained recurrent miscarriages. I will encourage my patient for follow-up and further treatment. I will involve multidisciplinary team management with me, and which will be specially I will include a psychologist with me, because she will have a lot of stress what she's going through. Then I will consult my patient as a couple, and I will tell her that although that no reason is found for her recurrent miscarriages, but as her first two miscarriages, they were belated ovum, and that happened and they bought it in the first trimester. So I will tell her, and I will educate her about it, that basically, as her age is 35 years and her husband age is also 40, so what we can just plan for her is that I will put her on folic acid and aspirin, and when she conceive next time, so then she will be eventually put on heparin. Sorry, not on heparin. When she conceives, but how she will conceive, I will also tell her about that. That this is best for her. That if she go for pre-implantation studies, that is an OVA will be selected and a sperm will be selected, which will and an embryo will be collected. Embryo will be made in the laboratory, which will have no anomalies, and then she will have IVF through of that embryo. So there are more chances that she don't have that belated ovum and that first trimester miscarriages again. There is a very chance of it, because what she been through was with age, actually, the recurrent miscarriages in the first trimester, it directly tells us about the anomalous embryo. So then I will also consult my patient that with tender love, if you have support at home, and also consult her husband about that. So there's live birth rate of 75%. Also tell my patient about the if she's using any she's doing excessive exercise or caffeine, she should just change it. I will tell my patient that she should lose some weight, do her dietary counseling as well, and then I will make sure that my patient actually understands, she's fully satisfied with my whatever I have told her, and I will book an appointment for her with an IVF counselor, so that she should know about the cost of it, and also the implications of an IVF pregnancy. Then I will give her a leaflet about all these things, and then she will have a follow-up visit with me, and meanwhile I will send her to a psychologist. Is there any role of semen analysis in such cases?
There is no role of semen analysis in such cases because the age of the husband is 40 years and she had previous 3 pregnancies with the same husband. And at that time, the husband must be younger than 40 years. So, and that resulted in these miscarriages. But as the age actually now passes, so yes, there is a role, there will be a role because the woman age is becoming more than 35 and the husband is 45. Therefore, I prescribed a pre-implantation study to my patient that she should conceive through that. Okay, and what is the role of karyotyping in such cases? Karyotyping role is very important, and if these studies are run on the third or second product of conception, so it can tell us about that if these product of conception have any anomaly like reciprocal translocation or reciprocal or Robertsonian translocation, and if they are present these translocations, then the blood karyotyping or the blood test on the mother and the father can be done for balanced translocations, and they can give us an evident clue that these balanced translocations, they come as unbalanced translocation in the offsprings, which result in miscarriages. Okay, chalo, I think 10 minutes हमारे हो गए. Yes, sir. Okay, so how do you think you performed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was like plus minus. Why do you think minus क्यों हुआ? Why do you think minus क्यों हुआ? Yeah, sir. I think so. I tried my best. I don't know. Now you will tell me. नहीं, मेरा तो ख्याल है कि you did pretty well. इसमें आपने almost सारी चीजें ही कवर कर दी और वो कवर करने पे we covered most of it. जो 2-3 चीजें आपने नहीं कवर की या जिसने एक्स्ट्रा का role of Lopin empirically, is that recommended कि अगर आपका फिर भी APL Yes, sir. Sir, the American guidelines say that, sir, I have read it yesterday in the talk article that if patient is actually coming with 3 recurrent miscarriages, so you will empirically put that patient preconceptionally on Loprin. And when, like previously it was, yes, कितनी डोज पे? sir, 75 milligram. Okay. एंड सर पहले ये था कि पहले आप फॉलिक एसिड दे पे फीटल कार्डिक एक्टिविटी आ जाए तो उसके बाद उस वक्त तक यूपीटी पॉजिटिव हो तो आप लोपरिन दे, एंड देन इफ द कार्डिक एक्टिविटी इज पॉजिटिव देन यू डू हेपरिन. बट सर अब इन्होंने चेंज कर दिया है कि आप प्रीकंसेप्शनली ही इसको डालें. लेकिन मेरा ख्याल है डोजेस जो है वो 75 है कि 150 है? Yes sir, 75 to 150. Sir, they have written 75 to 150. सर अब अनएक्सप्लेन्ड में उन्होंने एम्पिरिकल की बजाय ना वो प्रोजेस्टेरॉन का भी एडिशन कर दिया है. अगला स्टेप आ जाता, वो अगला है इसमें. सर प्रोजेस्टेरॉन विजाइनल जो प्रोजेस्टेरॉन भी अनएक्सप्लेन्ड में ऐड कर दिया इन्होंने. पहले कह रहे थे ना कि एम्पिरिकल होता है, अब कहते हैं इसका रोल है if the patient comes with vaginal bleeding and recurrent pregnancy loss. In the case of vaginal bleeding and recurrent pregnancy loss, उसमें हम Sir, up to 16 weeks देते हैं if the patient is having history of one pregnancy loss and if there are history of 3 or more miscarriages, then up to 12 weeks, and if there is any bleeding, then extend a period up to 16 weeks. Okay. And what is the role of cervical cerclage? Yes sir, there's we can offer this patient prophylactic cervical cerclage. So it will be done after 12 to 14 weeks. But this patient actually don't come with any cervical incompetency. The Sir, 2 miscarriages were happened due to the trimester में dilated होगा. ovum. एक-एक करके बेटा बोलो. हाँ. Yes sir, in my patient sir, there is no history of cervical incompetence, and 2 miscarriages were done in the first trimester. So
when she gets pregnant. So we will check her cervical length. If it is less than 2, and if she already have history of because she have already history of miscarriages, then we will go for cervical cerclage, and that will be done after 12 to 14 weeks after we know that the baby is intrauterine. That means you will do an ultrasound for cervical length, and if the cervical length is less than 2, then you will put it. Otherwise, you won't. Otherwise we will just go for prophylactic but after, if the pregnancy is normal, because she had history of two belated ovums, so we have to rule out first that. अच्छा, that is true, लेकिन इसमें आपने एक चीज जो अपनी हिस्ट्री मिस की थी, वो आपने ये मिस की थी कि आपके तीनों मिसकैरेजेस के बाद क्या उसकी इवैक्यूएशन हुई थी कि नहीं हुई थी, कि मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था, कि क्या हुआ था, कि स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन हुई थी? Yes, क्योंकि sir. एनी पेशेंट Sir, I who asked had her that आपको पेनलेस डायलिटेशन हुई थी और no, बेटा मैं बात okay, कर रहा हूँ, once she is yes, diagnosed कि जी मिसकैरेज होगी, तो उसके आगे तो या तो आपकी ट्रीटमेंट तीन ही होती है ना, या तो आप उसकी इवैक्यूएशन कर देते हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट देते हो, या वो स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल कर देती है। yes, क्योंकि एज अ वो पेशेंट जिसकी मल्टीपल डीएनसीज हुई हैं, उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का इंसिडेंस बढ़ जाता है, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होते हैं रादर देन दोज जिसमें इंटरवेंशन नहीं हुई। जिसमें इंटरवेंशन हुई है उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू गेट माय पॉइंट? yes, तो एम्पेरिकली अगर हमें कोई कॉज नहीं मिलती, हमने सारा वर्कअप जो आपने सारा कहा, जिसमें एपीएल है, थायराइड है, और अपना डायबिटीज, हाँ, रोल ऑफ डायबिटीज, उसका कितना रोल? स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज इन अर्ली प्रेगनेंसीज। yes, sir. Diabetes का रोल है, इसलिए सर we will do OGTT now, and if this is normal, so we will repeat it at 24 to 28 weeks. And agar sir 10 se zyada hogi hamare paas HbA1c, so there's a very chance that the baby is again anomalous, and if there's anomalous, so again sir first trimester losses again zyada ho jayegi, so aur fir aakhir mein sir stillbirths. ओके, सो जो आपका वर्कअप था उसमें आपने डायबिटीज नहीं की थी, तो उसमें Yes, हम sir, I did. You I did asked her. Sir, you told me that all investigations are normal. नहीं, मतलब ऑल इन्वेस्टिगेशन जो आपने की थी उसकी वजह। एंड दूसरा, एक मुझे ये बताओ, जो यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज हैं उसके लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, कौन सा अल्ट्रासाउंड करते हैं? सर उसमें हम 2D अल्ट्रासाउंड कराते हैं। यस सर, और सर 3D भी कराते हैं सर। एंड इफ देयर इज एनी सर इफ देयर इज एनी फाइब्रॉइड, या फिर अगर इसमें जो है यूट्राइन एनॉमली, फॉर एग्जांपल सेप्टेट है या सेप्टेट, सर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, तो सर उसके बाद हम जो है उसको हिस्टेरोस्कोपी करेक्ट भी कर लेते हैं, और सर आफ्टर दैट वी जस्ट गो फॉर हिस्टेरोस्कोपी फॉर थेरेप्यूटिक। बेटा यूट्राइन is it 2D? मेरा क्वेश्चन नहीं है। यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज के लिए बेस्ट टूल टू डायग्नोस के लिए क्या चीज है? HSG और hysteroscopy. सर बेस्ट इज हिस्टेरोस्कोपी, सर बेस्ट इज अ कंबाइंड अप्रोच जिसमें हम Sir, लेप्रोस्कोपी 3D करेंगे पहले- और हिस्टेरोस्कोपी करेंगे। Sir, 3D The best ultrasound is- can diagnose as well as classify uterine anomaly. Sir, Okay, I think so one is that combined approach is best. If we are doing a laparoscopy from upside, हम ऊपर से uterus को देख लेंगे, और अगर हम hysteroscopy के साथ इसके साथ combine कर लेंगे तो नीचे से भी हम देख लेंगे. So we will in the best way just see that अगर ये biconate है, अगर ये जो है septate है और arcuate है, सर उसका सही से पता चल जाएगा if we have a combined approach. एक आपने कहा कि जी हम लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कर लेंगे, और कोई और ऑप्शन है? कंबाइन, ओके, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है? एक MRI है सर, MRI, MRI और HSG सर, वो तो स्क्रीनिंग में आ जाते हैं, HSG एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो 2D है। यस, मेरा ख्याल है कि वी स्टार्ट विद पहले स्क्रीनिंग ही कर रहे हैं ना हम इस पेशेंट की। जी सर, पहले 2D अल्ट्रासाउंड एंड HSG, एंड इफ
If indicated, then we will proceed for 3D or combined approach. ओके इसमें सेलाइन फ्यूजन सोनोस्ट्रोग्राफी का क्या रोल है? सर उसका तो कोई रोल नहीं है सच उसमें सर, उसमें भी HSG की तरह जो है उसमें सर हमें वो पता चल पॉलिप जाएगा, वगैरह बट पता चल जाएगा, एंडोमेट्रियल पॉलिप ज्यादा उसके डिफाइन लिए पॉलिप भी और यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज भी उसमें डिटेक्ट हो जाती हैं, सेप्टम सेप्टेट ये सारी चीजें उसमें भी आ सकती हैं। तो वो डायग्नोस्टिक पर्पस स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए ये आपने फिर वन स्टेप एट टाइम के लेके चलना है। इसकी दोबारा जाके अगर हम इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ तो वी स्टार्ट विद सिंपल 2D अल्ट्रासाउंड, फिर 3D के बाद आपकी आ जाती है सेलाइन इन्फ्यूजन, MRI बाद में आ जाता है, और लास्टली जो आपका डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक आ जाता है वो आपका अपना हिस्टोस्कोपी, अगर जरूरत हो तो फिर साथ लेप्रोस्कोपी कंबाइंड अप्रोचेस की आती है। सर एग्जाम में हमें क्या बताना है? हम तो स्टार्ट से जस्ट 2 हम ये नहीं कहते कि 2D और 3D अल्ट्रासाउंड जो है वो मैक्सिमम डायग्नोस कर लेते हैं, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अनलेस कि आप देखते हैं कि अगर किसी का सिम्टम है और रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री एंड देयर इज नाउ नीड ऑफ थेराप्यूटिक, देन यू गो फॉर द हिस्टेरोस्कोपिक। नहीं देखो बेटा उसमें मैक्सिमम नहीं है, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द कीप इट, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज है जिसमें छोटे पॉलिप और छोटा सेप्टम जो है वो कैन बी मिस्ड। सो फॉर डायग्नोस्टिक के लिए फिर उसके बाद फिर आप उसकी हिस्टोस्कोपी कर सकते हो, और अगर इफ यू थिंक रिक्वायर्ड है तो फिर आप उसकी लेप्रोस्कोपी कर सकते हो। अब आगे आ जाता है हमारा इसमें आगे इसकी मैनेजमेंट, जिसकी रिकरेंट इस तरह हो गया जिसमें कोई कॉज नहीं आई, उसमें फिर नंबर 1 is कि you sit with them, you explain to them कि जी के no cause is detected, और because of कि नहीं है तो फिर भी you have कितना परसेंट चांसेस है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो नॉर्मल हो जाएगी? 75%, 70 to 75%. Yes, you still have 70+% chances कि she will have a normal pregnancy. तो एक वो है, लेकिन empirically हम उसको साथ जो है वो लो प्रिंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वंस शी गेट प्रेग्नेंट तो उसमें साथ हम उसकी ये डिफेस्टन कह रहा हूँ प्रोजेस्टेरोन जो है वो हम ऐड कर सकते हैं ताकि उसको लेके फिर हम आगे लेके चल सकते। दिस विल बी इन दोज केस जिन केसेस के अंदर ये अबॉर्टस का या इसका नहीं है, अगर दोबारा मिसकैरेज आ जाती है लेस टाइम 4 टाइम आ जाती है तो फिर हम इसको एडवाइस जरूर कर सकते हैं कि जी जो इसका अबॉर्टस पार्ट है उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। रहेगी बात जो है हमारी दोनों हस्बैंड वाइफ की कैरियोटाइपिंग करना या उनको करना, उसकी कॉस्ट कितनी आती है? डज हैव एनीबॉडी आइडिया? सर जो NIPT है सर उस पे तो तकरीबन 1,60,000 लगता है। नहीं बेटा NIPT तो आप तब करोगे ना जब वो प्रेग्नेंट होगी ना, मैं तो हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। 3 to 4 lakh. हाँ उनकी ऑलमोस्ट जो है 3 to 4 लाख रुपीज आती है दोनों की करने की स्क्रीनिंग, और उसकी जो आपको कितने ऐसे हैं उनमें से जिसमें से आपको कुछ निकल आता? सर 1 to 3%. 1 to 4% आई थिंक 1 to 4% का इंसिडेंस है जिसमें इसमें से निकलता है। तो क्या 4% के लिए आप सब पर कराना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, ये एक काइंड ऑफ डिबेटेबल और डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंडीशन फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है, पर एज अ रूटीन हम सबकी नहीं कराते, लेकिन ये अवेलेबल है, ये हो जाती हैं आजकल स्क्रीनिंग, और उसमें वही जिस तरह ट्रांसलोकेशन या सेक्स रिलेटेड जितनी है वो भी इसमें से पिकअप की जा सकती है। सर इसमें जैसे आप कोई एक्सक्यूज मी सर, जैसे कोई पेशेंट पूछेगी कि अब आप मेरे 4th मिसकैरेज का वेट करोगे कि वो कराएं, तो फिर उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि फिर आप यही करवा लें, पेरेंटल कैरियोटाइपिंग करवा लें? बेटा अगर वो करा भी लेते हैं तो उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन अगर मिल हाँ, भी जाती है तो आपको जाएंगे। तो यू कैन नॉट, उसको ट्रीटमेंट तो है नहीं ना उसका, जी जी सही तो है। वो वही अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि हाँ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए करना है तो ठीक है, लेकिन दैट विल नॉट रिजॉल्व हर इशू कि जी कि अगली दफा नहीं होगी। तो जनरली वी ट्राई कि हम उसको ऑन अ पॉजिटिव नोट 75% करके लेके चले जाएं, लेकिन अगर उसकी फिर भी हो जाती है चौथी तो फिर उस पर मेरा ख्याल है जो
ये आरपीओसिस के ऊपर उसकी जेनेटिक स्टडीज होती हैं, वो जरूर करा लेनी चाहिए। सर वो ये भी लिखा हुआ था कि IVF प्लस प्री जेनेटिक टेस्टिंग इम्प्रूव रिकरेंट वो करते हैं, डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट लॉस बट दे डज नॉट अफेक्ट लाइव बर्थ रेट। देखो जो ये वाला है उसमें आईवीएफ सिंपल नहीं होता, उसमें होता है पीजीटी। जी PGT सर, IVF प्लस PGT। हाँ मतलब इट्स वी डोंट कॉल इट आईवीएफ प्लस पीजीटी, उसको पीजीटी कहते हैं क्योंकि पीजीटी में वो सारे निकालेंगे, एक्सट्रीम करेंगे तो फिर आगे इसको लेके आगे चल सकते हैं। ठीक है तो जनरली आईवीएफ उसका एक कंपोनेंट है, उसके बगैर वो हो नहीं सकता। तो इसमें फिर आप आईवीएफ प्लस पीजीटी नहीं कहोगे, इसमें फिर सिर्फ सिंपल आप पीजीटी कहते हो, जहाँ तक मुझे पता है। सर। इसकी तो समझ सर इन नहीं आई दोनों कि की कितनी recurrent कॉस्ट प्रेगनेंसी आएगी? लॉस को बेहतर कर रहा है लेकिन लाइव बर्थ रेट नहीं बढ़ रहा, ये क्या मतलब? दैट इज ट्रू। नहीं उसमें बेटा एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर उसमें जब आपने पीजीटी कराया, सारे एम्ब्रियोस लेके उसकी स्क्रीनिंग होगी कि जी 5 एम्ब्रियोस निकले थे, जिसमें से 3 जो हैं वो नॉर्मल हैं और बाकी सब में कोई ना कोई एनएफएलआईडी या कुछ और चीज़ आ रही है। तो फिर उसमें जब आप नॉर्मल वाला इम्प्लांट करोगे वो करोगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जो नॉर्मल वाला है उसमें कोई अपना जो नॉर्मल वाला हमारा है, सॉरी जो नॉर्मल वाला है उसमें सक्सेस रेट, ये मैंने दोबारा नहीं पढ़ा कि लाइव बर्थ रेट नहीं है। लाइव बर्थ रेट का इंसिडेंस ओवरऑल जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो आईवीएफ में वैसे ही कम है देन द जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से, वो इम्पैक्ट जरूर आ जाता है। लेकिन फॉर दिस आई डोंट थिंक सो कि अगर नॉर्मल डालेंगे तो उसमें फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस का और फिर वो आईवीएफ की कॉम्प्लिकेशन उसके साथ आगे चल सकता है, वरना मैंने पढ़ा नहीं है कि जी कि उसकी वजह से फिर उसका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। सर एक Excuse me, अभी sir? आपने क्वेश्चन किया था कि रोल ऑफ हस्बैंड सीमन एनालिसिस इन दिस केस। देखो इसमें एक वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, वो कर सके देख सकते हैं, लेकिन जो आपकी रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं उसमें से उन्होंने इसको निकाल दिया। इट्स नॉट काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसमें से जो रूटीन की गाइडलाइंस के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रोल अब एट दिस स्टेज। हाँ वो जिनकी मॉर्फोलॉजी काफी पुअर हो उसमें किया जा सकता है, क्योंकि उसका Excuse me, एडवांटेज आपको ये उसका एडवांटेज जी। सर ये रिकरेंट मिसकैरेजेस का जरा हमें डेफिनेशन बता। हम तो 3 मिसकैरेजेस कहेंगे ना, क्योंकि जो अमेरिका गाइडलाइन है वो लोग तो 2 का कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से देखिए ज्यादा। अमेरिकन 2 कहते हैं, ब्रिटिशर्स 3 कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और सर जो प्रोजेस्टेरॉन की बात हुई, तो सर रिकरेंट मिसकैरेजेस में अगर उसको ब्लीडिंग हुई तब हम उसे देंगे, अगर नहीं है ब्लीडिंग तो फिर तो हम नहीं देंगे, या देंगे? नहीं फिर भी दे सकते हैं, फिर एम्पेरिकली भी दे सकते हो, जिस तरह आप एम्पेरिकली लोप्रिन दे रहे हो उस तरह आप एम्पेरिकली ठीक। एस्ट्रॉन का यूज कर सकते हो। सर तो फिर अनएक्सप्लेन्ड की ट्रीटमेंट जो है वो पीजीटी है? नहीं एक ऑप्शन है बेटा, इट्स नॉट द ओनली द ट्रीटमेंट, इट्स वन ऑफ द जिसमें आपको कोई और कॉज नहीं मिलती और यही है और उसका कुछ नहीं है, तो उसमें आप पेशेंट को ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन पीजीटी की अपनी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, दैट इज समथिंग लाइक बिटवीन 7 to 9 लाख रुपीस। सर हम कपल की काउंसलिंग में क्या कहेंगे कि अगर 1 to 4% है डिटेक्टेबल एब्नॉर्मैलिटीज, तो जी हम उन्हें ये कहेंगे कि खुदा ना करे अगर ये 4th one भी मिसकैरेज की तरफ जाता है तो हम आपके प्रोग्रेस ऑफ कंसेप्शन का टेस्ट लेंगे, लेकिन हम उनको काउंसल नहीं करेंगे कि देयर आर सम ऑफ द जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज जो कि फैमिलीज में लर्न करती हैं एंड मे बी बोथ ऑफ यू आर हैविंग, या इंसिडेंट्स बताएंगे काउंसलिंग में कि नहीं बताएंगे? मेरा तो ख्याल है आप 2 बातें उसको जरूर बताते हो। नंबर 1 इज के इंसिडेंस जो काफी लो है इसकी डिटेक्शन रेट, और नंबर 2 कि अगर वो डिटेक्ट भी हो जाता है तो उसका कोई क्योर या उसकी कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं। उसके बाद इफ दे स्टिल डिसाइड कि जी वी वुड लाइक टू हैव द वर्कअप फॉर दिस, फिर बेशक आप करा लो, एंड ऑफ कोर्स इफ दे कैन अफोर्ड इट, फिर ये उसकी में आ जाता है, पर दैट इज यू हैव टू असेस कि कितना जरूरी है उसे कराना, बट इट्स नॉट अ फर्स्ट लाइन ऑफ treatment or sorry investigation in which we come into this. सर ऐसे केस में एस्प्रिन तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव पे देंगे ना, या प्री प्रेगनेंसी देंगे? अब वो कहते हैं प्री प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं, you can start with प्री प्रेगनेंसी।
सर इसमें ये जो प्रोजेस्टेरॉन का रोल आप बता रहे हैं कि मतलब अगर ब्लीडिंग नहीं भी हुई बाद में तो भी मतलब आपने स्टार्ट कर देना एम्पेरिकली, तो सर उसको फिर हम कितने first तक trimester. कंटिन्यू? For the first trimester, 13 Okay, plus sir. 13 वीक्स के अराउंड वापस इसको टेपर ऑफ कर वो आपको बंद कर देते कब स्टार्ट करना है प्रोजेस्टेरॉन? जब once she becomes pregnant. Once her pregnancy test come positive और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नजर आ जाए, सेट नजर आ जाए, then you can start with that. रिटर्न तक कंटिन्यू रखिए मैं नहीं, बस जब उसका पुराने मिसकैरेजेस की डेट गुजर फर्स्ट जाएगी। बेटा ये देखिए कि देखो एक वो मरीज है जिसका सेकंड ट्राइमेस्टर या अपना प्री हुआ, ऐसे पेशेंट्स के अंदर तो फिर देन इट कंटिन्यूज टिल द एंड। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले रिकरेंट मिसकैरेजेस वाले हैं उनमें नॉर्मली फिर हम 13 वीक्स के बाद उसको आप बंद कर देते हैं। तीसरा, क्योंकि हमारे आईवीएफ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम तो एक बार जब डाउन रेगुलेट करते हैं तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर देन वी कंटिन्यू देन इवन फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन उसके बाद उसकी सर्वाइकल लेंथ और प्री टर्म या पेन्स के हिसाब से इवन वी कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक उसको लेके जा सकते हैं। सर जब प्रेगनेंसी हो जाए तो आईवीएफसी का कोई रोल है? और प्रोजेस्टेरॉन हम कैसे देंगे? डूफेस्ट्रॉन, ग्रेविबिनॉन या साइक्लोजेस्ट पेस्ट्रीज? जो रिकमेंडेड है बेटा उसमें साइक्लोजेस्ट, लेकिन साइक्लोजेस्ट को लेने के लिए अभी तक जितनी है उसकी इनकन्वीनियंस और वो थोड़ा सा वो इशू आ जाता है और उसकी वजह से वैजाइनल डिस्चार्ज वो सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो इसकी साइक्लोजेस्ट ही है। उससे क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? सर आईवीएफसी का कोई रोल है? आई डोंट थिंक सो कि आईवीएफसी का कहीं रोल नहीं है, लेकिन सर प्रोजेस्टेरोन अपना इसका रोल डेफिनेटली जो हम देखते हैं ग्रेविबिनॉन या ग्रेबिनॉन या हाइड्रोक्सी, इसका रोल है फॉर दोज पेशेंट जिनका प्री टर्म लेबर फैले हुआ या जिनकी सर्वाइकल लेंथ थोड़ी आ रही। सर ये साइक्लोजेस्ट पेस्ट्री हम उन्हें कैसे देंगे? वंस दे गेट प्रेग्नेंट तो हम उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करवा देंगे रखना। जी, होते ही नॉर्मल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सॉरी सर, either through the vaginal route or through the rectal route. once they are pregnant. जो प्रोजेस्टेरोन है once pregnancy test becomes positive और आप कंफर्म कर लेते हो कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है तो उससे फिर आपने फौरन ही आइदर वेजाइनल या रेक्टल रूट के साथ स्टार्ट कर देना। हमारे प्री मिसकैरेजेस के बाद हम ये स्टार्ट कर देंगे जिसे हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। 3 के बाद हाँ, जो अगर दोबारा हो तो फिर दे देते, मैं तो इवन 2 के बाद दे देता हूँ। ठीक सर, यानी कि एक हम लोप्रिन कब तक कंटिन्यू रखनी है? जो लोप्रिन का रोल है अगर आपने एम्पेरिकली दी हुई है फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आमतौर पे फिर हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बंद कर देते हैं। 13 समटाइम्स अगर कंटिन्यू करना है तो मैक्सिमम 16 वीक्स तक लेके जा सकते हैं। सर अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है एपीएलएस की या उनकी फैमिली की कोई हिस्ट्री नहीं है, और इसमें क्या फैमिली के थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस का कोई रोल होता है? जाए ना फैमिली की, और फिर क्या हम उसमें पेशेंट सॉरी को बेटा, सर क्या हम आवाज नहीं, दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन अपना मेरा। जी सर सर हाँ। एक मैं एस्ट्री गाइडलाइन पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ना एक पॉइंट नहीं समझ लगा। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके उन्होंने कहा था कि फैमिली हेरिडिटरी स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, वो क्या है? क्योंकि नॉर्मली तो रिकमेंडेड नहीं है। और सेकेंडली अगर पेशेंट की कोई एपीएलएस की हिस्ट्री नहीं है तो क्या हम पेशेंट को पॉजिटिव हार्ट रेट आने के ऊपर हेपरिन का कोई रोल है? हेपरिन मैंने पढ़ा है लेकिन एम्पेरिकली अब ये क्लेक्सिन और हेपरिन दोनों दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइस, दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइस, और रिकमेंडेशन नहीं है उसमें कि आपने इसमें इसका डालना है। हेपरिन का आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्लेक्सिन का तो मुझे पता है, मैं रिसेंटली पढ़ा था उसमें उन्होंने मना कर दिया कि जो उसका एज सच रोल और द प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन फिर ऐसे पेशेंट के अंदर वो जीटीटी और वो कराना फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है वंस दे प्रेगनेंसी के बाद।
सर ये थायराइड के बारे में जरा बताएं कि सर गाइडलाइन में तो ये कि थायराइड की अगर सिम्टम्स नहीं है तो आप टेस्टिंग भी ना करें। फिर उसमें एक जगह पे ये कि अगर हाइपोथायराइड है तो आप मतलब फिर हम उसको थायरोक्सिन दें, लाइक सर हाइपोथायराइड की तो नहीं, अगर तो उसकी रिपोर्ट में सब क्लिनिकल सर। रिकमेंडेड है वो तो आपने जरूर नहीं। सर सर सब इसमें भी क्लिनिकल का उन्होंने कहा सब था कि मत दे। सर इसमें भी टॉग आर्टिकल में दिया हुआ था कि पहले आप TSH लेवल करवाएं, इफ द TSH लेवल इज मोर देन 4 देन गो फॉर T4 लेवल। अगर नहीं है तो फिर फर्दर आप उसे प्रोसीड ना वो करें। ये वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप उसकी है ना सर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, कुछ समझ नहीं लग रही। प्लीज आप सब अपने अपने माइक्स म्यूट करें, शायद पीछे से उसकी वजह से आवाज की डिस्टॉर्शन हो रही है। कोई एक हाला आपकी अगर आप कर दें कि फाइनल कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में करवानी चाहिए, एंड यार लिस्ट अगर कर दें। यार जो है ना, अब जो अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरी पेशेंट थी, ठीक है, तो अब वो तो प्रेग्नेंट नहीं थी ना, शी हैव कम पोस्ट जो भी उसका वो अबॉर्शन हुआ तो उसके बाद आई थी। तो अब देखो सबसे पहले हम उसका जो है TVS करेंगे, ठीक है। अगर जो है अगर हम उसका TVS देख कर लेंगे तो हमें उसका पता चला कि इसमें फाइब्रॉइड था या फिर कोई एनॉमली थी, हम पता चलेगी। एनॉमली के लिए जिस तरह सर ने कहा कि जो फर्स्ट लाइन है वो 2D अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। 2D हमारे पास फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है। और जो है इसके साथ फिर जो 3D है ना, तो ये फिर इसे एडवांस है। फिर जो अगर तुमने डायग्नोस्टिक और मतलब तुमने उसमें कोई काम करना है, सेप्टम निकालना है या फिर वट एवर, उसके लिए हम लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बस फिर 2D अल्ट्रासाउंड रख लेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि 2D अल्ट्रासाउंड, फिर हमारी जो पेशेंट है उसमें OGT करना जरूरी है, ठीक है। फिर APLS स्क्रीनिंग भी अभी हम करेंगे, इवन अगर ये प्रेग्नेंट भी होगी तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो एक ही बार आते हैं, उसके बाद नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए हम एम्पेरिकली कर सकते हैं। अगर उसके जो लेवल्स है वो मॉडरेटली हाई होंगे तो सही है, हम उसको फॉलोअप नहीं करें और APLS नहीं डायग्नोज करेंगे। अगर बहुत ज्यादा सिवियरली हाई है तो फिर हम यही सोचें कि यार ये APLS है, ठीक है। एक ये हो गया। फिर TFTs के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोग ना कराएं, ठीक है। लेकिन ये है ना कि अगर किसी को साइन सिम्टम्स है तो TFTs और जो प्रोलैक्टिन है फिर वो कराने हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो बस हमारी जो HB वगैरह वो तो बस बेसिक हेल्थ प्रोफाइल में आ जाएगा, और तो इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। डॉक्टर हाला, वो जो सर ने सेलाइन सोनोग्राफी का बताया है हाँ उसमें वो हमको 2D के साथ बताया सर ने कि 2D और 2D अल्ट्रासाउंड प्लस सेलाइन इन्फ्यूज्ड सोनोग्राफी। क्योंकि जो हम 2D अल्ट्रासाउंड करते तो उसे तो 2Ds में हमें 2 डायमेंशन पर, लेकिन जब हम सेलाइन इन्फ्यूज्ड हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे तो हम नीचे से जब डाई डालेंगे तो सारे काउंटर्स, तो सर ने कहा कि उसमें पॉलिफ का भी पता चल जाएगा, साइनिकी का भी पता चल जाएगा, कोई भी एनॉमली उसका पता, मतलब जो भी मसला है अंदर का वो पता चल जाएगा, पॉलिफ वगैरह भी आ ठीक है, जाएगा। मतलब मोटे तौर पे आप नहीं करवा रहा। TVS कराएं, 2D डायबिटीज के लिए नहीं, करवाएं, 3DS ना थायराइड के लिए कराना है। अभी तो हमने कहा कि हम 2D अल्ट्रासाउंड 2D, कराएंगे हाँ ना। 2D हाँ, अल्ट्रासाउंड कराएं, प्लस डायबिटीज के लिए कराएं, प्लस OGT की, सेलाइन, थायराइड सेलाइन और इन्फ्यूज्ड। प्रोलैक्टिन, हाँ और जो है बस यही टेस्ट है। हाँ। और डॉक्टर फिर हाला, ये पेरियोटाइपिंग किस तरह करवाएंगे? ये भी करवाएंगे ना, ये ट्रांसलोकेशन कार्योटाइपिंग हाँ वो भी करा सकते हैं कि अगर हमारे पास, वो तो हम पेशेंट से पूछेंगे। अगर वो अब उसका भी अबॉर्शन हो गया है ना तो हम उसे कहेंगे कि तो अब तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे हम ये टेस्ट रन करेंगे, ठीक है, जो कार्योटाइपिंग के लिए हम तुम्हारे बच्चे का करेंगे कि अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन आएगी या रोबर्ट्सोनियन, तो फिर हम तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का करेंगे। और अगर वो भी लेकिन वो तो करने ये था, उसका तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। 2D अल्ट्रासाउंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, वो TVS नहीं होता। बेटा 2D अल्ट्रासाउंड जो है वो जनरल सिंपल अल्ट्रासाउंड है जो ग्रे स्केल पे आप करते हो। 2D मींस 2 डायमेंशनल, 3D मींस कि 3 डायमेंशनल में उसकी तस्वीर पिक्चर आ जाती है। 3D आर मोर स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस
इस चीज को आसान करने के लिए द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज पहले आप आइडेंटिफाई करो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में क्या लेवल होगा TSH का तो हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को? एंड एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए 2D जी आवाज नहीं आ रही है सर, बिल्कुल कट हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा इन्फेक्शंस पे कमेंट कर दे कि सर जो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वेजिनोसिस होगी तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस कॉज कर देगी। तो इन्फेक्शंस में जिस तरह की टॉर्च नहीं रिकमेंडेड, तो हम इन्फेक्शंस में क्या देखें सिर्फ इतना जरा हम बता दें इन्फेक्शंस के लिए अगर उसको बैक्टीरिया जब आप उसका यूज करते हो या मेजी ट्रीटमेंट करते हो वो कोऑर्डिनेट कलर और सिम्टम्स के हिसाब से करोगे ना। Yes, तो sir. then you do it at randomly. Like सर OGTT तो फिर जिसका BMI 25 से ज्यादा होगा सिर्फ उसी में करवाएंगे, हर एक में तो नहीं करवाएंगे? नहीं, OGTT सब में करानी है, पाकिस्तान वो में तो तो- वैसे भी सब में करानी है। हाँ, वो एशियन एथनिसिटी है और इस वजह से भी थैंक यू कह दो यार, उनका नेट खराब इसमें है। OGTT कराएंगे या HbA1c कराएंगे? डॉक्टर हाला मुझे प्लीज एक आंसर बता दें। मुझे ना ये पूछना था कि देखें